Today we will learn value of t ratios in different quadrants for different angles. Before moving to this topic, let us see the value of t ratios for minus theta angle. X, y, x dash and y dash. Let us take 2 points P1 with coordinate xy and its image on x-axis, that is P2. Since P2 is the image of xy, so this point will be x minus y. Clearly, if this angle is theta, then this angle is going to be minus theta with respect to x-axis, because this is in clockwise orientation and this one is in anti-clockwise orientation. What should be the values of different parts? Here it will be x, y, and in lower side it is minus y. Again, this side will be r, which is nothing but under root x square plus y square, and similarly this side is also r. So if I take triangle PMO, this is P1M, P1MO, I am taking this triangle. Take sine theta, P by H, Y by R, cos theta B by H means X by R, tan theta P by B, cot theta B by P, sec theta H by B, and cosec theta H by P. But if I discuss those values in the lower triangle, that is triangle P2MO, in triangle P2MO, students, you can see here that in this triangle the angle is minus theta. आप देख सकते हो ये एंगल माइनस थीटा है, इसलिए सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो माइनस थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे. तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू P by H means minus y by R, cos minus theta B by H x by R. Similarly, you can check the values of tan theta. It will be minus y by x, cot tan minus theta, in fact the value of tan minus theta, and the value of cot minus theta is minus x by y. Value of sec minus theta will be r by x, and the value of cosec minus theta will be r by y. By comparing these two sides, we have the following conclusion. The value of sine theta is y by r, but the value of sine minus theta is minus y by r. So, what will be our conclusion? So, by seeing these two values, we have concluded that sine minus theta is equal to minus sine theta. See these two, sine minus theta minus y by r and minus y by r is sine theta. So sine minus theta का वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल है, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल है, tan माइनस थीटा is equal to minus tan theta, cot minus theta is equal to minus cot theta, sec minus theta is equal to sec minus theta is equal to sec theta, and cosec minus theta is equal to minus cosec theta. तो ये टेबल आपको याद रखना है. तो आप समझ गए
कि कॉस और सेक इस दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ अगर नेगेटिव एंगल यूज किया जाए तो उसका वैल्यू वही होता है जो उसके पॉजिटिव एंगल के वैल्यू के बराबर है। मतलब सब कॉस और सेक में एंगल को नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन, टैन, कॉट और कॉसेक में एंगल अगर नेगेटिव हो तो वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। आप देख सकते हैं, मतलब अगर साइन के साथ माइनस थीटा आ रहा है तो करना क्या है कि माइनस थीटा में माइनस को बाहर निकाल देना है, लेकिन अगर कॉस के साथ माइनस थीटा यूज होगा तो वहां माइनस खत्म हो जाएगा और कोई माइनस बाहर नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप इन बातों को समझ गए हैं। अब आइए टॉपिक पे आते हैं, जो कि है वैल्यू ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स फॉर डिफरेंट एंगल्स। स्टूडेंट्स, आप क्लास 10 में 90 माइनस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ चुके हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो उस वैल्यूज में हम लोगों ने देखा था साइन 90 माइनस थीटा दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर 90 के साथ साइन यूज होगा तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और अगर 90 के साथ कॉस यूज होगा तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में। ऐसे ही टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसिक में कन्वर्ट हो जाता है और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी जानते हो। मैं इन दोनों के बेसिस पे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट करेंगे। साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा। Where n is any odd integer। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है साइन के लिए। ऐसे ही आप कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए भी लिख सकते हो। n पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। और n कोई भी ऑड इंटीजर है, जैसे 1, 3, 5, 7। यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री दिख रहा है, और n क्या है यहाँ पे, n का वैल्यू यहाँ पे है 1, ऑड नंबर है जो कि, तो ऑड और 90 के साथ आने पे साइन चेंज हो जाता है कॉस में। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ ये 90 है और ये ऑड है तो साइन बदल जाएगा कॉस में। प्लस माइनस थीटा है, यहाँ प्लस माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ प्लस कॉस थीटा है। तो ये नहीं समझना है कि इस प्लस में ये प्लस होगा और इस माइनस में ये माइनस होगा, नहीं, ये बात नहीं है। ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के नॉलेज पे, जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन नेगेटिव रहेगा। अगर एंगल जो चूज किया गया है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस लेंगे। लेकिन अगर चूज किया हुआ एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आएगा। तो चलिए इस फॉर्मूलाज के आधार पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। फाइंड साइन 495 degree. Here you have to convert this angle as an odd multiple of 90. ये 495 को इस तरीके से चेंज करना है ताकि ये 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज हो जाए। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो 495 इज नथिंग बट 5 into 90 प्लस 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला दिखा रहे थे 90 का ऑड मल्टीपल
तो यहाँ 90 आ चुका है और ये ऑड मल्टीपल है। तो सबसे फर्स्ट में तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 45, ये तो सबसे फर्स्ट में लिख देना है। अब सोचना है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पे। क्या आप समझ पा रहे हो कि 495 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 टाइम्स 90, 1 2 3 4। अगर हम एक चक्कर कंप्लीट करें तो 4 टाइम्स 90 खत्म हो गई, 590। सो मूव फर्दर 590, तो ये 590 का प्लेस है, प्लस 45, मतलब यहां से भी आगे बढ़ गए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच गए हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस का साइन लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा जो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, मीन्स साइन 495 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। लेट अस टेक one more example upon this formula. Find cosec minus 1110 डिग्री। सबसे फर्स्ट में क्या करना है? सबसे फर्स्ट में आप देखो कि यहाँ कॉसेक के साथ माइनस लगा हुआ है, और अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीख रहे थे कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉसेक 1110 डिग्री। अब हमारा सेकेंड टास्क होगा इस 1110 डिग्री को 90 के ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करें। थोड़ा सा रफ करते हैं आपके साथ। 90 1 जा 90, 92 जा 120, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 92 जा 180 यहां यूज करेंगे तो डिवाइड तो हो जा रहा है, लेकिन ये जो क्वोशिएंट बज रहा है वह है इवन, ये एक इवन नंबर आ रहा है। फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या जरूरी है कि 90 के साथ ऑड मल्टीपल होना चाहिए, और ये है इवन। तो जब ऐसा केस आपके सामने उपस्थित हो स्टूडेंट कि 90 से चेंज करते समय मल्टीप्लायर इवन आ रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि जितने बार डिवाइड हो रहा है उससे एक अधिक बार लगा देना है, मतलब 3 टाइम्स। तो 93 जा 270। अब ये ऑड हो गया और अब इसको माइनस कर लेंगे तो क्लियरली ये बचेगा -60। तो इसका मतलब हुआ कॉसेक 1110 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 90 -60 डिग्री। अब ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, 90 दिख रहा है और ऑड मल्टीपल दिख रहा है, 90 का ऑड मल्टीपल। तो जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये जो कॉसेक है ये चेंज कर जाएगा सेक में, तो बन जाएगा सेक 60। ये सेक थीटा, सेक 60 डिग्री बन गया। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, तो फिर क्वाड्रेंट के नॉलेज पे चलेंगे। ये 13 टाइम्स 90 है, तो आप देख सकते हैं 13 टाइम्स 90, तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में 12 खत्म हो जाएगा। ये देखिए ऐसे 3 बार घूमेंगे तो 12 12 खत्म हो जाएगा, 13, ये 13 आ गया। फिर माइनस है 13 90, यहां तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन माइनस है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे ही रह जाएंगे, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जगह है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस होगा। बाहर में पहले से ही माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस सेक 60 एंड द वैल्यू ऑफ सेक 60 इज 2. So the value of cosec minus 1110 degree will be -2. I think you have understood the formula, and you have understood the value of cosec minus 1110 degree. So now let us solve the problem. So first we have to find cosec minus 1110 degree. So first we have to find cosec minus 1110 degree. So I think you have understood the formula
and certainly you should not have any doubt now. But if you are facing some problem still, then see the next formula which will simplify all your problems. अगर इसको बनाने में कुछ परेशानी महसूस हो रही है आपको, तो हम लोग वैसे तो ये मैंने हर स्टेप को क्लियरली बताया है, आप ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक और फॉर्मूला रखना चाहता हूं जो आपका कुछ प्रॉब्लम को और शॉर्ट कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है। एंड द फॉर्मूला इज साइन n पाई प्लस माइनस थीटा is equal to plus minus sin theta, where n be any integer। तो पिछले फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? पिछले फॉर्मूला में 90 होना चाहिए था और 90 का ऑड मल्टीपल, यहाँ 90 नहीं है, यहाँ 180 डिग्री है। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, और ऑड इंटीजर नहीं है, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर। तो 180 का मल्टीपल चाहे वो ऑड हो या इवन हो के साथ अगर साइन यूज होता है तो डायरेक्टली साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रह जाता है, बट प्लस माइनस क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। फिर भी स्टूडेंट्स आपकी सुविधा के लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार किया है। आप इस सिंप्लीफाइड वर्जन को याद रखोगे तो क्वाड्रेंट चेक करने में भी बहुत आसानी होगी। क्या करना है, अगर ऑड मल्टीपल है पाई का, मतलब 180 के साथ अगर कोई ऑड नंबर चल रहा है 1 3 5 7 एक्सेट्रा, उसके साथ अगर प्लस थीटा है तब तो आप अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझना, और इसके साथ अगर माइनस थीटा है तो सर्टेनली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। सॉरी, इट इज द प्लेस फॉर इवन मल्टीपल, दिस इज द प्लेस फॉर ऑड मल्टीपल। यहां पे एक बार फिर से आप देख लो, यहाँ पे पाई का इवन मल्टीपल होगा, ये 2 पाई 360 डिग्री का जगह है, तो यहाँ पाई का इवन मल्टीपल होगा 2 4 6 8 इस तरह का कोई मल्टीपल है, तो प्लस थीटा होने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस थीटा होने पे फोर्थ क्वाड्रेंट। पर अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो माइनस थीटा होने पे सेकंड क्वाड्रेंट और प्लस थीटा होने पे थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप इसे याद रखोगे तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ध्यान क्या रखना है, एक बार फिर से, ऑड पाई के साथ माइनस रहने पे सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस रहने पे थर्ड क्वाड्रेंट, इवन पाई के साथ माइनस रहने पे फोर्थ क्वाड्रेंट और प्लस रहने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसे देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया, फिर से उसी क्वेश्चन को देखते हैं बट इस मेथड से। फाइंड कॉसेक माइनस 1110 डिग्री, फिर से ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कॉसेक 1110 डिग्री। अब इस 1110 डिग्री को पाई मतलब 180 के मल्टीप्लायर में चेंज करना है, तो आपके साथ मैं भी कर लेता हूं। 186 जब आप देख सकते हैं 6 टाइम्स एंड 30 इज द रिमाइंडर, सो माइनस कॉसेक 6 इंटू 180 प्लस 30। तो सबसे पहले 180 के टर्म में चेंज कर देना है इस तरीके से। अब यहां देखो 180 दिख रहा है और इवन नंबर दिख रहा है, इवन 180 और प्लस। इस टेबल में देखो तो इवन 180 और प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब जरूर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा।
ये इवन और प्लस को देख के कैलकुलेट हो गया तुरंत। इवन प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल पॉजिटिव। कॉसेक 30 डिग्री चेंज नहीं होता है इसमें। 90 वाले में साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, जैसे क्लास 10 में होता था। लेकिन 180 के साथ आने पे साइन का साइन रह जाता है, वैसे ही कॉसेक का कॉसेक 30 डिग्री रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो कॉसेक -1110 डिग्री का वैल्यू आया -2। तो आप देख सकते हो इस मेथड से बनाने से भी आंसर सेम है जो पिछले मेथड से आया था, लेकिन इस मेथड से बनाना पिछले मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, क्योंकि क्वाड्रेंट का काउंटिंग बड़ा आसानी से आप इस टेबल के जरिए कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस मेथड पे। वन मोर एग्जांपल, cot -15 π/4। Again, cot minus theta is minus cot theta. So first of all, cot can be taken out. If you try to simplify it, then 15π 4 का मल्टीपल में देखिए और जो सबसे सिंपल पड़े, तो 4 4 जा 16 -1, 4π -π/4, it can be written as 4 4 जा 16 -1, this is 15π/4। अगर यहाँ पे हम 3 लिखें, 4 3 जा 12, तो यहाँ +3 आएगा, और 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो फिर क्वाड्रेंट का लफड़ा बचा हुआ रहेगा, इसलिए आपको एक अधिक टाइम्स लेकर के देख लेना है। ये 4 4 जा 16 -π/4, जब एंगल एक्यूट बच जाए तो यूज कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये इवन है, 180 तो दिख ही रहा है, ये इवन नंबर है, और यहाँ कौन सा साइन दिख रहा है, नेगेटिव साइन। इवन और नेगेटिव, तो अभी जो क्वाड्रेंट बनाए थे उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप समझ सकते हो कि इवन के साथ नेगेटिव होने पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इवन और नेगेटिव का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉट होता है नेगेटिव, माइनस कॉट π/4, माइनस माइनस प्लस, एंड कॉट π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हमारा आंसर हुआ। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास को आप पूरी तरीके से समझ गए हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।